ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरि वैष्णवास धन्वत प्रणाम। तो आप सभी का पुनः स्वागत है भागवतम के हमारे सत्र में। तो हम लोग हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कुंती महारानी की प्रेयर्स पे चर्चा कर रहे हैं। माया जवनिका चन्नम अज्ञानदोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृश नटो नाट्यधरो यथा। बहुत ही अद्भुत श्रीमती कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं। माया डिल्यूडिंग, जवनिका कर्टेन, Achannam covered by Ajna ignorant, Adokshajam beyond the range of material conception, transcendental, Avyayam irreproachable, Na not, Lakshase observed, Moodadrisha by the foolish observer, Nataha artist, Natyadhara dressed as a player, Yatha as. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai Nitai Gautama Hari Hari Bol. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Purport. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna affirms that less intelligent person mistake him to be ordinary man like us, and thus they deride him. The same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent person are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord Himself appears amongst us as Ram, Narsimha, Varaha, and or in His original form as Krishna, He performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Sri Krishna exhibited His humanly
impossible activities even from the days of his lying on the lap of his father. He killed the Putana witch, although he smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up frog's umbrella and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like Puranas, Itihasas, histories, and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the shape of Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He is accepted as a supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, देवल असित नारद मध्व शंकर रामानुज श्री चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती भक्ति सिद्धांत सरस्वती and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literature. And yet, there is a class of men with demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and present. Such persons could not recognize Lord Sri Krishna even when he was present before them. Another difficulty is that those who depend on their imperfect senses cannot realize him as the Supreme Lord. Such persons are like the modern scientist. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as Adokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to observe anything, everything, and anything. But we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the women class, who are less intelligent. For a less intelligent man, there must be such things as temples, mosques, or such churches so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about Him from the authorities in such holy places. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temples, mosques, or churches, is beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon Him by the active service. श्रील प्रभुपाद की जय. बहुत ही सुंदर श्लोका है. Beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो यहाँ पे कुंती महारानी बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति कर रही हैं. और स्तुति क्या कर रही हैं? स्तुति क्या कर रही हैं? मूढ़ दृश्य न लक्ष्य से नटः नाट्य थरः यथा. हाँ, भगवान नटः नाट्य थरः है. भगवान ने आवरण धारण किया है. कैसा? हम्म, माया का आवरण. इसलिए भगवान के सामने हम्म, जब जीव रहता है, हम्म, तो भगवान
कवर्ड कर देते हैं अपने आप को माया के आवरण से। या फिर उल्टा है, भगवान तो प्रकट हैं, और जीव कवर्ड है माया के आवरण से। भगवान तो अपनी अंतरंगा शक्ति में है। तो भगवान जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, उस व्यक्ति उन भगवान को कौन दर्शन कर सकता है? जो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। और जैसी व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा तो वो भगवान को दर्शन नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहें। हम्म, हम अगर बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे तो फिर क्या होगा? अगर हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और भगवान यही करते हैं, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं और बहिरंगा शक्ति से हम कवर्ड रहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से मोड में हैं, हमें भगवान का दर्शन उस डिग्री में होता है। जैसे जो घोर तमोगुण में है, वो तो भगवान के अस्तित्व को नकार देता है। जो तमोगुण में है, हम्म, हम्म, उसको कुछ पता नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं है। जो रजोगुण में है, हाँ, उसको कभी लगता है कि भगवान है और कभी लगता है कि भगवान नहीं है। और जो सत्वगुण में है, हम्म, उसको ये अनुभूति होती है कि भगवान है, परंतु दर्शन नहीं होते। उसको समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अनुभूति भी उसको हम बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग रहती है, पर रियलाइजेशन नहीं है। सत्वगुण में भी रियलाइजेशन नहीं है भगवान का। उसको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भगवान होना चाहिए, परंतु जो शुद्ध सत्व यानी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, उसी को भगवान, वही भगवान का रियलाइजेशन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का रियलाइजेशन कौन कर सकता है? कि जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। भगवान की अनुभूति कौन कर सकता है? जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है ना? वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. कवर्ड रहते हैं भगवान। यू आर इनविजिबल टू द फुलिश ऑब्जर्वर। इसलिए भगवान, जो मूर्ख व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, उसको उसको नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली एज एन एक्टर ड्रेस्ड एज अ प्लेयर नॉट रिकग्नाइज। जैसे एक ड्रामा करने वाला आर्टिस्ट स्टेज पे चला जाए और ड्रामा करे, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन है। ये कौन है? मूर्ख व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा ये कौन है। लेकिन जिसके पास आईज है, दोज हैव गॉट द आईज, दे कैन सी। तो आईज भी अलग अलग लेवल की होती हैं। हम्म, किसी के पास ग्रॉस आईज हैं, किसी के पास मेंटल आईज हैं, किसी के पास और थोड़ी सूक्ष्म इंटेलेक्चुअल आईज हैं, किसी के पास और सटल सबकॉन्शियस माइंड देख सकते हैं, और फिर और किसी के पास और भी सटल ईगो को देख सकते हैं, और किसी के पास और भी सटल भगवान के दर्शन कर सकते हैं हमें। ये है। इन द भगवद गीता, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, लॉर्ड श्री कृष्ण affirms that a less intelligent makes persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. Hmm. In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna affirms, मूढ़ोयम नाभि जानाति। मूर्ख जो व्यक्ति है वो मुझे नहीं जानते, मुझे जानते ही नहीं है मूर्ख व्यक्ति। द सेम इज कंफर्म्ड हियर इन बाय क्वीन कुंती। और ये कंफर्म्ड है किसके द्वारा? क्वीन कुंती के द्वारा भी, कि आप कवर्ड रहते हो।
The less intelligent person are those who rebel against the authority of the Lord. और ये जो लेस इंटेलिजेंट, ये मूर्ख लोग, ये वाले कौन है? जो भगवान की अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल करते हैं। सच पर्सन्स आर नोन एज असुरास। और ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या कहलाते हैं? असुर कहलाते हैं, आसुरिक भाव आश्रिता। तो असुरास कैनॉट रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स अथॉरिटी। जो असुर हैं वो भगवान की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कर ही नहीं सकते। When the Lord Himself appears amongst us as Rama, Narasimha, Varaha, or in His original form as Krishna, He performs many wonderful acts which are humanly impossible. तो जब भगवान अलग अलग विभिन्न अवतारों में आते हैं, राम, नरसिम्हा, वराह के रूप में, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। As we shall find in the 10th canto of this great literature, जैसा कि हम देखेंगे, हाँ, 10th canto of this great literature, इस ग्रेट लिटरेचर के 10वें स्कंद में हम देखेंगे, लॉर्ड श्री कृष्ण exhibited his humanly impossible activities even from the days of lying on the lap of his mother। तो भगवान ने जो दिव्य लीलाएं की, ये कब से की? इवन, हाँ, फ्रॉम द डेज, पूतना का जो वध किया, इवन फ्रॉम द डेज ऑफ लाइंग ऑन द लैप ऑफ हिज मदर, वहां से की। ही किल्ड द पूतना विच, उन्होंने पूतना, हाँ, का वध किया। Although she smeared her breast with poison just to kill the Lord, यद्यपि उन्होंने, वो पूतना ने क्या किया था? पॉइजन लगाया अपनी ब्रेस्ट पे, जस्ट टू किल द लॉर्ड। द लॉर्ड sucked her breast like a natural baby and he sucked out her life very life also। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है, इसको थोड़ा सा समझना होगा हमें। ये यहाँ पे जो है, ये पूतना को देखिए। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि अलग अलग जीव अलग अलग गुणों से बंधे होते हैं। तो जैसे पूतना है, हाँ, तो पूतना घोर तमोगुण में है, तो वो क्या कर रही है? जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है भगवान, उनका नाश करने की चेष्टा कर रही है। परंतु ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? पूतना का नाश हो जाएगा। बहुत ही सरल बात है। भगवान का नाश कैसे हो सकता है? भगवान तो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, तीन मोड से परे हैं। और पूतना कौन से गुण में है? घोर घोर तमोगुण में। घोर तमोगुण क्या होगा? कि जो डिस्ट्रक्शन के मोड में रहता है, घोर तमोगुण। और घोर घोर तमोगुण क्या हो गया? जब वो जिसने क्रिएशन की है उसी का डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। हाँ, जो पूतना को भी, हाँ, कि प्राकट्य करता है, उसी उन्हीं का डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। क्या मूर्खता है ये! महामूर्खता है ये। परंतु ऐसा कैसे? देखिए ना, पूतना के सामने भगवान है, पूतना की गोद में भगवान है, पूतना अपने स्तन पान करा रही भगवान को। अब इससे निकटतम, बाह्य रूप से अगर हम देखें तो इससे निकटतम सानिध्य भगवान का किसका होगा? हाँ, परंतु वो पूतना जिसका इतना निकटतम सानिध्य है, वो पूतना भगवान को रियलाइज नहीं कर पा रही। उसको एक सेकंड के लिए तो झटका लगा कि ये कौन है, छुपा हुआ काल तो नहीं है। जब वो आई तो एक सेकंड के डर डर गई। डर गई क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन से एक सेकंड के लिए तो उसके हृदय में जो आत्मा है उसको स्पार्क जगा, लेकिन घोर तमोगुण का आवरण इतना ज्यादा है कि तुरंत वो कवर्ड हो गया। तुरंत कवर्ड हो गया वो, तुरंत कवर्ड हो गया। हम्म, तुरंत ही कवर्ड हो गया। उसके लिए हम कुछ, कोई कुछ कर नहीं सका। लेकिन फिर वो पूतना को सदगति मिली। कैसे मिली? क्योंकि उसने भगवान के सानिध्य में ये न के न प्रकार है ना, कृष्ण मन निवेश है करी। देखिए, घोर तमोगुण में भी है, हाँ, घोर घोर तमोगुण में है तब भी। हाँ, पर ये सबके साथ नहीं होता, सभी असुरों के साथ नहीं होता। जो असुर घोर घोर तमोगुण में होते हैं, जो भक्तों का विनाश करते हैं, और जो हम्म
जो भगवान का विनाश करते हैं, जो भगवान की भक्ति का विनाश करते हैं, they don't go higher up the position. They don't go higher up the position. The Lord sucked her breast like a natural baby and he sucked out her life also. वो सोच रही थी कि मैं भगवान को मार दूंगी, पर ये उल्टा हो गया. हम्म. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. इसी प्रकार भगवान ने क्या किया? ये पॉइंट क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े होके भगवान बन गए. भगवान बचपन से ही भगवान है, भगवान प्रकट से ही भगवान है. कोई एक्टिविटी करके, कोई क्रिया करके हम भगवान नहीं बन सकते. भगवान भगवान है और हम भगवान के दास हैं. ये अंतर है. These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like Puranas, Itihasas and Upanishads. हाँ. और ये कहाँ पर मेंशन्ड है? सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द अथॉरिटेटिव वैदिक लिटरेचर्स लाइक पुराणों में मेंशन्ड है, इतिहास में मेंशन्ड है और उपनिषद्स में मेंशन्ड है. He has delivered wonderful instructions in the shape of भगवत गीता. उन्होंने बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन द शेप ऑफ भगवत गीता. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher and as a renouncer. और भगवान ने बहुत अद्भुत अद्भुत अपनी कलाएं दिखाई है, as a hero, as a householder, as a teacher. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Deval, Asit, Narad, Madhva, Shankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jeev Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhakti Siddhanta Saraswati and all other authorities of the line. बड़े बड़े आचार्यों का नाम ले रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान जो है ये ऐसे ही भगवान है. ये पूर्व के श्लोक में जो कुंती महारानी के संबंध से भगवान नहीं है ये. क्योंकि कुंती महारानी के भतीजे हैं और कुछ बहुत बचा रहे हैं, उससे भगवान नहीं है. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं. और फिर कुंती महारानी जो प्रेयर कर रही है, फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो ये भगवान बचपन से ही, यानी भगवान शाश्वत रूप से भगवान रहते हैं और भगवान प्रकट होते हैं. भगवान का शरीर दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है. और ये सभी आचार्य कन्फर्म करते हैं. He himself has declared as much in many places of the authentic literatures. और ये उन्होंने भी डिक्लेयर किया है ऑथेंटिक लिटरेचर की मैनी प्लेसेस पे. And yet there is a class of men with demoniac mentality who are always reluctant to accept the Lord as a supreme absolute truth. Hmm. And yet there is a class of men with demoniac mentality who are always reluctant to accept the Lord as supreme. परंतु जो आसुरिक लोग हैं वो कभी नहीं मानते भगवान को सुप्रीम एब्सोल्यूट. दिस इज पार्शियली ड्यू टू देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज. और वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड पार्शियली ड्यू टू देयर स्टबन obstinacy which results from various misdeeds in the past and present. और उनकी जो स्टबन ऑब्स्टिनेसी है उसके कारण, और पूर्व के और प्रेजेंट के जो दुष्कर्म है उसके कारण, वो नहीं रियलाइज कर पाते. सच पर्सन्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज लॉर्ड श्री कृष्णा इवन व्हेन ही वाज प्रेजेंट बिफोर देम. ये पूतना के साथ भी है, दुर्योधन के साथ भी है, शकुनी के साथ भी है, धृतराष्ट्र के साथ भी, सबके साथ है. Another difficulty is that those who depend more and more on their imperfect senses cannot realize him as a supreme lord. जो अपने imperfect senses पे फेथ रखते हैं वो कभी भी भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते. Such persons are like the modern scientist. और ऐसे मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैं. दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग बाय देयर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. वो सभी जानना चाहते हैं भगवान को अपने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से. बट इट इज इम्पॉसिबल टू नो द सुप्रीम पर्सन बाय इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. परंतु भगवान को जानना असंभव है बाय इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. ही इज डिस्क्राइब्ड हियरिन एज अधोक्षज. अधोक्षज मतलब बियॉन्ड अक्षज. अक्षज मतलब सेंसेस, beyond the range of experimental knowledge or senses. Bhagwan. All senses are imperfect. We claim to observe everything and everything, but we must admit that we can observe things
under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class who are less intelligent. And less intelligent in terms of spiritual realization की बात करें, परंतु everybody can take up to the highest position. जनरली वो शरीर का जो दोष है, प्रभुपाद विमेन जब ऐसे बोलते हैं, जब भी प्रभुपाद बोल रहे हैं तो वो उस बॉडी का दोष बोल रहे हैं। जैसे एक सुअर की बॉडी है तो उसके एक अपने गुण और दोष हैं, कुत्ते की बॉडी के अपने गुण दोष, एक एक मेल की बॉडी के गुण दोष है, वैसे स्त्री के बॉडी के कुछ गुण दोष हैं। तो वो शरीर मिला है इसका मतलब कुछ गुण दोष है ना, वो इसलिए है गुण दोष। तो ये इस प्रकार है। तो कंडीशन सोल के पास ये इशू है कि वो भगवान को नहीं देख पाता। फॉर लेस इंटेलिजेंट मैन देयर मस्ट बी सच थिंग एज, और ऐसे जो कम बुद्धिशाली लोग हैं उनको आवश्यक है कि उनके लिए मंदिर हो, मंदिर की व्यवस्था हो। हाँ, मंदिर की व्यवस्था क्यों हो? क्योंकि वो लोग जो अधोक्षज हैं, जो बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल परसेप्शन है, उनको देख नहीं पाएंगे। हम्म, तो वो देख नहीं पाएंगे तो वो देखेंगे कैसे? फिर वो मंदिर जाके देखेंगे, वो मंदिर जाके ही देख पाएंगे। हम्म, और जो एडवांस डिवोटी है वो भी मंदिर में दर्शन करते हैं। वो कैसे दर्शन करते हैं? चिन्मय दर्शन करते हैं। चिन्मय, मनोमय और प्राकृत दर्शन, तो तीनों दर्शन करते हैं। प्राकृत दर्शन करता है कोई, कोई मनोमय दर्शन करता है, कोई चिन्मय दर्शन करता है। For less intelligent man, this beginning of the spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship. और जो मूर्ख लोग हैं वो ये कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र हैं, तो फिर हमें मंदिर जाने की क्यों आवश्यकता है? इसीलिए जाने की आवश्यकता है मंदिर। क्यों? क्योंकि आपके पास वो रियलाइजेशन नहीं। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर बट वेयर इज द रियलाइजेशन? हु हैज दैट रियलाइजेशन? किसके पास है वो रियलाइजेशन? You don't have that realization. So don't speak so proudly. Mhm. And only foolish men decry the establishment of such places of worship. अब मूर्ख लोग ही हैं जैसे सच प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिक्राई करते हैं। हाँ, जो डिनाई करते हैं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, भगवान तो मेरे हृदय में है, फलाना ढिमाका, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। Which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. मास ऑफ पीपल के लिए हाँ ये जरूरी है भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना। फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन बोइंग डाउन बिफोर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड एज जनरली डन इन द टेम्पल्स, मॉस्क और चर्चेस इज बेनिफिशियल एज इट इज फॉर एडवांस डिवोटीज टू मेडिटेट अपॉन हिम बाय एक्टिव सर्विस। तो एडवांस डिवोटीज क्या करते हैं? एक्टिव सेवा के द्वारा भगवान को मेडिटेट करते हैं, और बाकी के नीचे के कार्य तो करते ही हैं, परंतु दर्शन स्मरण ये सब तो करते ही हैं, परंतु बोइंग डाउन ये सब तो करते ही हैं, परंतु एक्टिव सेवा के द्वारा वो भगवान को कॉन्स्टेंटली रियलाइज रखते हैं। सो दैट्स द ग्लोरी ऑफ एडवांस डिवोटीज, दैट्स देयर ग्लोरी। तो अद्भुत ये श्लोका है और अद्भुत कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, अद्भुत शिल प्रभुपाद के पर्पट्स हैं। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।